कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पैनलिस्ट स्पीकर प्रोफेसर पवनेश कुमार जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर शैलेश द्विवेदी जी से को आमंत्रित करते हैं। Thank you, Dr. Vikas sir. I welcome again Professor Pawnesh Kumar sir. Pawnesh Kumar sir is a Dean Pandit Madan Mohan Malviya School of Commerce and Management, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. Pawnesh Kumar has academic background MBA in International Business and Finance. He is also an MBA from Institute of Management Sciences, Banaras University, with a specialization in international business. He obtained PhD in rural banking. In an academic career spanning over 17 years, he has contributed to the areas of international business and finance through over 25 publications in research journals and books of national and international repute. He is also a reviewer to various journals of repute in the area of commerce and management. Dr. Kumar has organized and chairs sessions in various national and international conferences, seminars, workshops, sponsored by various government funding agencies. He is also visiting and guest faculty to various institutions and has organized training and development programs for organizations like KVIC, BIRD, Central Bank of India for their middle and senior managerial quarter. With these words, I invite Professor Pawnesh sir, please come and enlighten on today's session. Professor Pawnesh sir. Thank you so much, Dr. Shailesh. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है. Thank you so much for so nice introduction. First of all, I would like to congratulate the Indian Accounting Association, Mirzapur branch and Government PG College, Ombra. They have been so proactive that they have organized a session on budget 2022. A pre-budget discussion was there, and also the budget was introduced yesterday, and they have been so, you can say, prompt that they have conducted this session today itself, just one day after the introduction of the budget. So I think none of the institutions have been so active in organizing these type of events, and these events are naturally very relevant because budget usually affects our day-to-day life. Number one, because budget is a financial statement of a country. बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी भी कंट्री का, जो किसी भी कंट्री का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है. रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो इट शोज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी. द लर्नेड प्रोफेसर, द पैनलिस्ट सर एन डी माथुर has already shared lot of things about budget 2022. He has not only analyzed but also interpreted it in a very better way. So सबसे पहले फ्रेंड्स इस बजट की दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट and you will be वो पहली जो बॉक्स था यूज किया जा रहा था बहुत लंबे समय तक. इंडिया में जो हम बात करते हैं ये अब रेड कलर में होता है. और दूसरी परंपरा जो बदली है, द सेकंड मेजर चेंज, कि इससे पहले जो बजट आता था वो इवनिंग में आता था. अब जो बजट आ रहा है वो मॉर्निंग में आ रहा है 11 o'clock. जो आप देख रहे हैं, yesterday it has been introduced at 11 AM. ओके, और दिस बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि ये अमृत काल का बजट है. अमृत काल, यू माइट हैव हियर्ड दिस वर्ड अमृत काल इन दिस बजट, दिस टर्म. तो अमृत काल का मतलब है वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस,
and this budget has been prepared taking into account next 25 years. मतलब ये 75 साल से 100 साल, मतलब 2047 जब हमारे 100 इयर्स होंगे, उस तो ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया है। फ्रेंड्स, रेट है इट विल बी 9.2%। जो ग्रोथ रेट रहेगी वो ये आएगा जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, लेकिन ये 21-22 की बात कर रहा हूं मैं। बट इन द ईयर 22-23 इट विल बी बिटवीन 8.2 to 8.5%। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ये डेटा है कि जो अभी तक का जो ग्रोथ रेट है इट वाज 9.2% जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, और अगले साल जो प्रोजेक्टेड है 22 और 23 में इट विल बी नियर अबाउट 8.2 to 8.5%। जो मेजर जो इकोनॉमिक चेक है, लिटमस टेस्ट, वो होता है जीएसटी कलेक्शन, and the data has been shared by the learned Professor N.D. Mathur sir that it is around 1,41,000 crore and it is one of the highest रिफॉर्म्स हुए हैं। रिफॉर्म्स वर्थवाइल है क्योंकि वर्थफुल है क्योंक't जो जीएसटी कलेक्शन इज इंक्रीजिंग। तो बजट की जब हम बात करें, द टोटल साइज ऑफ दिस बजट इज 38 लाख करोड़, नियर अबाउट 38 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। एंड इफ यू एनालाइज इट वी विल फाइंड दैट दी जो मनी आ रही है इंडिया में सबसे ज्यादा वो आ रही है बोरोइंग से। अगर पर रुपी की अगर हम बात करते हैं, इट इज कमिंग थ्रू बोरोइंग्स, एंड सेकंड नंबर इज जीएसटी। तो ये दो मेजर सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इंटरेस्ट ये एनालाइज करते हैं कि 1 रुपए में से कितना पैसा जा रहा है कहां पे, तो दो जो मेजर चीजें हैं वो है इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग 17 पैसे पर रुपी ऑन इंटरेस्ट फॉर द बोरोड मनी, एंड नंबर 2 15% ऑन द स्टेट शेयर, जो स्टेट का शेयर होता है टोटल रेवेन्यू में उसको, एंड अदर आर सेक्टरल स्कीम्स एंड ऑल दैट। ओके, डिफेंस पे नियर अबाउट वी आर स्पेंडिंग 8% और 8 रुपीज 8% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन डिफेंस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें फ्रेंड्स, द मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट इन दिस बजट इज दैट माय वॉइस इज ऑडिबल ना विकास जी? विकास जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक, ओके। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मेजर इनहेंस हुआ है इस बजट में, दैट इज up to 7.5 लाख करोड़, एंड इट इज 35% ग्रोथ। फ्रेंड्स, ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो किसी भी कंट्री का जो कैपिटल एसेट्स क्रिएट होते हैं दैट इज बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बार का जो ग्रोथ है गवर्नमेंट का दैट इज नियर अबाउट 35%। इट विल बी नाउ 7.5 लाख करोड़, और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा खर्च है इट विल इंक्रीज अप टू 2.9% ऑफ द जीडीपी। 2.9% ऑफ द जीडीपी हम खर्च करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जहां तक स्टेट्स की बात है, ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस पिछले साल गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस कि ए स्पेशल फंड ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज हैज बीन क्रिएटेड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड अप टू 50,000 करोड़। और अगले साल गवर्नमेंट जो है 1 लाख करोड़ रुपीस अलग से स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रख रही है, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव 1 लाख करोड़ रुपीस टू स्टेट्स फॉर 50 ईयर्स, 0% इंटरेस्ट पे। फिस्कल डेफिसिट जो हम बात कर रहे हैं इट इज 6.9% इन 21-22 एंड इट विल बी 6.4% अप टू इन द ईयर 22-23। लेकिन टारगेट जो है हमारा, वो टारगेट इज दैट वी वांट्स टू ब्रिंग दिस फिस्कल डेफिसिट अप टू 4.5% टिल 25-26। ये टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। जहां तक मैं बात करूं, जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो एनडी माथुर सर ने भी डिस्कस किया, जिसमें आईटी, ट्रांसमिशन, लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज, रोडवेज, इन पे हमारा जो है वो फोकस होगा। मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है वो है, अगर हम ग्रीन, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि कार्बन फ्री स्टेट बनाने के लिए, कंट्री बनाने के लिए, कि इंडिया का जो है वो अचीव करना है हमको 2070 तक हम
चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी हो वो पॉल्यूशन काफी उसमें कम हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, और जहां तक ग्रीन बॉन्ड्स है, ग्रीन बॉन्ड्स को अभी तक इतना महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन ग्रीन बॉन्ड्स का भी जिक्र इस बजट में किया गया है। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट जो है ये प्रोजेक्ट आने वाला है, नेशनल रोडवेज रोपवे डेवलपमेंट, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें सहयोग होगा। एंड दैट विल बी 60 किलोमीटर्स के 8 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं रोपवे, एंड इट विल बी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर दोज स्टेट्स which are in the Himalayan regions like उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ के लिए ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा होती है ये सब की। तो रोपवे वाले 8 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 60 किलोमीटर के। नंबर 2, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम और जो बैड बैंक है इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, और गवर्नमेंट इज टारगेटिंग क्रिएशन ऑफ 60 लाख न्यू जॉब्स। जहां तक एक और दूसरी चीज है, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। 75 digital banks in 75 districts will be opened in this particular year. Okay, and all the post offices in India will be now provide core banking solutions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फ्रेंड्स एक दो चीज और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि इस बजट का जो टारगेट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग। ये वो टारगेट है इस बजट का कि कैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, और इसके लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। और एक जैसा सर ने बताया कि डिजिटल रुपी जो है इट विल बी इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2022-23। ये डिजिटल रुपी से क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, जो हमारे पेपर करेंसी छपती है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, छपने का कॉस्ट है, ये सब। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि हर साल जितने भी नोट छपते हैं उसके लगभग 20% नोट्स जो है वो बेकार हो जाते हैं और आरबीआई को फिर से छापना पड़ता है। तो डिजिटल करेंसी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, ये बचेगी। ठीक है, ये कैसी होगी ये अभी हमको नहीं मालूम है, क्या नाम होगा ये हमको नहीं मालूम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा उसमें, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये इसी साल से इंट्रोड्यूस होने वाला है, दिस ईयर ओनली। इस बजट में क्रिप्टो करेंसी पे, जैसे हमने प्री बजट एनालिसिस में बात किया था, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। क्रिप्टो करेंसी के नाम से कोई भी चीज इसमें बात नहीं की है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट में 30% टैक्स को इंपोज किया गया है, उसको लेजिटिमाइज नहीं किया गया है, कोई बात क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं की गई है, लेकिन 30% इंटरेस्ट विल बी इम्पोज्ड ऑन दी वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, इसको हम क्रिप्टो टैक्स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये वर्ड यूज नहीं हुआ है। एंड 1% जो है देयर विल बी टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए मैं यही वर्ड यूज करूंगा इसमें। नेक्स्ट, जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट, दिस विल बी बेटर, ये 3.6% से 3.9% पे इंक्रीज होने वाला है। और जो गंगा के किनारे जो शहर हैं वहां पे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, एंड वी नो दैट सिक्किम इज वन ऑफ द स्टेट्स जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया में नंबर 1 है। गंगा के जो किनारे जो शहर है वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं थी, गवर्नमेंट इसको 5 किलोमीटर तक कर रही है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज है, किसान ड्रोन्स विल बी इंट्रोड्यूस, एंड दिस किसान ड्रोन्स विल बी यूज टू मींस कह सकते हैं जो पेस्टिसाइड्स है उसको डालने के लिए ड्रोन्स का यूज किसान कर पाएंगे। इट विल बी ऑन पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है कि स्टूडेंट्स दोज हु हैव जॉइंड, नाबार्ड इज गोइंग टू फंड दोज एग्री स्टार्टअप्स। अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्टार्टअप करना जा रहा है तो नाबार्ड इज गोइंग टू क्रिएट ए स्पेशल फंड फॉर दैट। और गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन द ऑयल सीड्स। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और as far as the river and waterways are concerned, जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको केन बेतवा प्रोजेक्ट कहते हैं, 2 नदियां केन और बेतवा, फॉर दैट 14,000 करोड़ रुपीस हैज बीन एलोकेटेड, जिससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि जो हम कह सकते हैं वो सिंचित होगी, एंड 62 लाख लोगों को इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, it will continue. Okay, there will be
फॉर फॉर्मलाइजिंग द इकोनॉमी। हम कह सकते हैं हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर्स में नौकरी करते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है उनको फॉर्मलाइज करने के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे उद्यम है, ई श्रम योजना है, नेशनल करियर स्कीम है, ये सभी चीजों, ये जितनी भी स्कीम्स है, ऑल दीज स्कीम्स विल बी इंटरलिंक्ड। तो इससे जो है फॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। और जहां तक फॉर्मल स्किलिंग की बात हो रही है कि स्किलिंग और अप स्किलिंग और री स्किलिंग की बात हो रही है, तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट जो है IITs को फंडिंग करने जा रही है। जहां एक चीज फ्रेंड, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, तो यूनिवर्सिटी को एक मालूम होना चाहिए कि इसमें एक जिक्र किया गया थोड़ा सा कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, फिर से ध्यान से सुनेंगे आप लोग, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू ओपन देयर सेंटर्स इन इंडिया। और कहां पे खोल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, एक GIFT IFSC है, ये है आपका अहमदाबाद में। वहां पर सबसे पहले ये कोर्सेज फॉरेन यूनिवर्सिटीज खोल पाएंगी, खासतौर से रिलेटेड फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज रहेंगे। कोर्सेज विल बी डिजाइन्ड बाय देम बट दे विल बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होने जा रहा है जो फाइनेंस के कोर्सेज हैं, मैंने बताया गिफ्ट IFSC अहमदाबाद में, वहां पर आपको नए ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज बाय द रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी अवेलेबल। 1 क्लास 1 TV चैनल, अभी तक 12 चैनल से उनको 200 चैनल करने जा रहा है। और PM विद्या जो है उसको गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाने जा रही है। और सबको मालूम है डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी ये कोई अलग से यूनिवर्सिटी नहीं होगी फ्रेंड्स, जितने भी यूनिवर्सिटीज डिजिटल कोर्सेज चला रही हैं आज की डेट में, इन सभी यूनिवर्सिटीज को जोड़कर, जिसको सर ने बताया अभी, ND माथुर सर ने, हब एंड स्पोक मॉडल पे ये चलेगा। मतलब कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और वो यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी जो अलग अलग कोर्सेज चला रही है इनको फॉर्मलाइज करेगी और स्टैंडर्डाइज करेगी। जहां तक SEZ की बात है, SEZ आपको मालूम है कि चाइना में ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, इंडिया में अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो SEZ के लिए सिंगल विंडो सिस्टम आ रहा है इंडिया में। महिलाओं के लिए, जैसा आपने देखा होगा कि कल वो तालियां बजी थी, जो डायमंड के जो है उसमें 5% कस्टम ड्यूटी कम हुई है। एक्सपोर्ट जो है ज्वेलरी वो लोग कर पाएंगे आसानी से, और उस पर कस्टम ड्यूटी कम होगी। और अभी फ्रेंड्स जो हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में, अभी तक हम लोग जेम के थ्रू खरीद करते हैं और उस पर ई-बिल जनरेट नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ई-बिल जनरेट करने के लिए कहेगी, जहां पे जो व्यापारी अपना माल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दे रहा है, जो जेम पोर्टल के थ्रू खरीद रहे हैं, वहां पे वो ट्रैक कर पाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इस बार का जो SEZ कॉन्सेप्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, द स्टेट गवर्नमेंट हमको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो स्टेट SEZ को डेवलप करने में पार्टनर बनाने जा रही है सरकार। जहां तक मैं इनकम टैक्स कहूंगा, इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है। कंटिन्यूअस 7 ईयर से, 7 सालों से, 7 ईयर से कोई भी चेंज नहीं आया है, ना तो स्लैब रेट में, ना किसी भी चीज में। कोऑपरेटिव सेक्टर को गवर्नमेंट एक अच्छी सुविधा देने जा रही है कि 18.5% से इसको कम करके 15%। मैं गवर्नमेंट की इस मामले में और जिन लोगों की 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी है, जो सरचार्ज वो दे रहे थे, उनको थोड़ा फायदा हुआ है। वो नंबर्स में होंगे, हो सकता है 500, 600, 700 लोग हों, उनका सरचार्ज 12% से घटा के 7% किया गया। बस ये छोटा सा जो चेंज है वो ये है, जिनका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स आता है उनका सरचार्ज 12% से 7% किया गया है। और डिफेंस में फ्रेंड्स अभी 68% की खरीदारी जो होगी इंडियन कंपनी से, इंडिया से होगी। तो ये एक तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको सपोर्ट करने वाला बजट मुझे लगता है। और हम जैसे इनकम टैक्स जो पेयर्स है उनको एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है। 2 साल के अंदर अगर कोई चेंज करना हो, ITR में कोई गलती हो गई हो, तो उसको हम 2 साल के अंदर चेंज कर सकते हैं, ऐसा इस बजट में बताया गया। जहां तक लास्ट पॉइंट में आऊंगा, मैं 1-2 पॉइंट और उसके बाद अपनी बात करूंगा और कोशिश करूंगा आप लोग के जो क्वेश्चन है उनको मैं आंसर्स दे पाऊं। हेल्थ सेक्टर में जो सबसे बड़ी चीज है, मैं एक डाटा यहां पे शेयर करूंगा जो दैनिक भास्कर में आया है। दैट डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की 5% पॉपुलेशन डिप्रेशन में है। अब मुझे नहीं मालूम डिप्रेशन कह लीजिए, स्ट्रेस कह लीजिए, टोटल पॉपुलेशन का 5%, और 17% लोग कम से कम किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो इसको ध्यान में रखकर आज तक किसी बजट में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। जिसको हम बोलते हैं नेशनल
टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, एंड आई अप्रिशिएट दिस, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे भी स्ट्रेस में है, अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की चीजें, निम्हांस बेंगलोर है, दैट विल बी द नोडल सेंटर, and 23 centers will be opened throughout India. Mental health has been given much importance in this budget, and I appreciate it because a large chunk of the population is under strength, that is near about 5%. जहां तक रूरल डेवलपमेंट की बात है, एक फ्रेंड्स आकांक्षी जिले आप जानते होंगे जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहां पर इस समय विकास जी बैठे हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र, वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक चेंज किया गया है, अभी तक जिला स्तर पे प्लान बनते थे, काफी अच्छे हमारे लिए 95% जो जिले सेलेक्ट हुए थे डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें काफी डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट अब उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उन ब्लॉक्स को टारगेट करने वाली है जहां पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचा था। इस बार के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ब्लॉक को, उन ब्लॉक्स को टारगेट किया जाएगा जहां पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। लास्ट में vibrant village scheme government has launched. This scheme has been launched for the border districts, like मैं जहां पे मैं मोतिहारी में हूं, it is the border of Nepal, तो ऐसे जिले जो कि बॉर्डर से जुड़े, अब खास तौर से इसमें ध्यान देने वाली बात है, these are all those districts which are in the north इंडिया में, साउथ इंडिया इन सब के लिए नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिन बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरे कंट्री से, देयर द डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी देयर, एंड दिस नेम ऑफ द स्कीम इज वाइब्रेंट विलेज स्कीम। अर्बन डेवलपमेंट की जहां तक बात है, वहां पे 5 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रही है, जहां पे अर्बन डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए 250 करोड़ रुपीस का अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट देने वाली है। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन फॉर लैंड विल बी इंट्रोड्यूस। और जहां तक हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्रीन इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी 280 गीगावाट पावर बाय 2030 गवर्नमेंट ये बैटरी स्वैपिंग स्कीम लेके आने वाली है, जहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अगर बैटरी खत्म हो या आप पुराना अपना बैटरी दीजिए, वहां से आप नया बैटरी ले सकते हैं। बैटरी चार्जिंग स्टेशन जो है इसको इंक्रीज किए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाएंगे इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द फंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ मेरी बातें थी, और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट पे जो टारगेट था हमारा 1.75 लाख करोड़ का, वी हैव नॉट अचीव्ड, इट इज ओनली 9,240 करोड़। कहां पे हमारा टारगेट था 1.75 लाख करोड़, एंड 9,240 करोड़ हम जनरेट कर पाए। ये थोड़ा सा नहीं है, और गवर्नमेंट ने अपने इसको चेंज भी किया अपने टारगेट्स को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग शेयर मार्केट में विश्वास रखते हैं, कि LIC का जो IPO आने वाला है, इट इज गोइंग टू हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट। ये LIC का जो IPO है, दैट विल बी ए सक्सेसफुल IPO, एंड आई थिंक दैट बाय दिस इन्वेस्टमेंट in LIC, government is going to generate a large chunk of fund, and it will help, it will give some boost to the economy also, and as far as the fiscal deficit front is concerned, that will be taken care of by this IPO. So I hope there are a lot of things to discuss, but it is very short time, so I have tried to summarize the things in short period of time. मुझे रेलवे की बात करना यहाँ पे वो नहीं है, आप लोग सब लोग पेपर्स में पढ़े होंगे, 400 वंदे ये ट्रेन होगा, फिर उसके बाद और सारी चीजें, तो उसके बारे में। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि आज जब हम लोग छोटे थे और बजट आता था, तो हम लोग कहते थे अरे बनारस में कौन सी ट्रेन मिल गई, वहां से कौन सी ट्रेन चली है, तो एक उत्साह का माहौल होता था। लेकिन अच्छा हुआ कि दोनों चीजें जो है वो मर्ज हो गई। जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स थे वो अब नहीं है, अब व्यक्ति उस हिसाब से नहीं देखता है। अब फॉर द बजट अब जो है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, न कि पॉपुलिस्टिक मेजर्स को ध्यान में रख के। जो हम लोग बात कर रहे थे प्री बजट डिस्कशन में कि सारी चीजें चुनाव ध्यान में रख के होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये मैं मानता हूं कि एक मैच्योर गवर्नमेंट और एक अच्छी गवर्नमेंट का जो है वो है। जहां तक मीडियम क्लास फैमिली की है, हम लोगों की बात है, थोड़ा सा ठीक है, सेक्रीफाइस होगा,
टैक्स बढ़ा नहीं है, उतना से ही खुश हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपकी बातों से निश्चित रूप से हमारे ऑनलाइन जुड़े विद्यार्थी और फैकल्टी मेंबर्स, और जैसा कि आपने बताया कि जब हम लोग छोटे थे या कुछ वर्षों पहले तक एक आम आदमी की धारणा यही रहती थी कि बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, बस। लेकिन जैसा विजनरी गवर्नमेंट है और उसी तरह विजनरी हम लोग को भी होना पड़ेगा